ఉభయ సభల ప్రారంభం అనంతరం లోక్సభ వాయిదా పడింది. రాజ్యసభ లైవ్ చూద్దాం. Copy each in Hindi and English of the 28th report of the department related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, Shriman Vaidinath Ramji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरा नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति का 35वां एवं 36वां प्रतिवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Now matters raised with permission. Shriman Satpal Sharma ji, I am coming back to you. श्रीमान माननीय सभापति महोदय, शर्मा जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का मौका दिया है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार प्रत्येक देशवासी को दशकों से था। 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 370 को निरस्त कर और जम्मू कश्मीर को भारत के सब मुख्य धारा में जो है वो जोड़ा। माननीय गृह मंत्री जी ने आज ही के दिन 2019 में जो कार्य जम्मू कश्मीर के लिए किया वो आज केंद्र शासित प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले गया है। धारा 370 से जैसा काटा जो दशकों तक हम जम्मू कश्मीर वासियों को चुभ रहा था उसे प्रधानमंत्री जी ने उखाड़ कर भेज दिया। मानवर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए अपना बलिदान दिया। सरकार करते हुए जम्मू कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहुत लोगों ने इस सपने को साकार करने के लिए जो बलिदान दिया है, आज मैं उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूँ। आज भारत सरकार की हर योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के हर वासी को मिल रहा है जो पहले से वंचित थे। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल जिन्होंने आम इंसान की पीड़ा को कभी अपना नहीं समझा, अपने परिवार के लोगों को इस जगह बुलाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जगह समझकर आप समाज शक्ति को हक मिला। 70 सालों से कांग्रेस उन्हें ले नहीं दिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम आज जम्मू कश्मीर में भारत के दूसरे हिस्सों से लोग आसानी से जम्मू कश्मीर में निवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने वह दौर भी देखा है जब राष्ट्रवादी लोगों को इन लोगों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न जाने कितने राष्ट्रभक्तों पर जुल्म किया और उनकी हत्याएं तक की जरूरत की। मानवर प्रधानमंत्री जी की सशक्त नीतियों ने और माननीय गृह मंत्री जी की दूरदर्शी इतना कह दिया था 70 के बाद तो देने वाला जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन आज कश्मीर का युवा पहले इन दलों के मान से भटक गया था। This is against the rule. It is prohibited to interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. As per the rule 235, I am not going to allow you. I am going to take action against you. I am repeatedly telling. Then don't force me to do that. Now, Dr. M. Tambidare. Sir, can I speak this? Mike, please. Give me the mic. Dr. Tamil Sir, Honorable Chairman, sir,
I rise to urge the Union Government to honor the long-standing and unanimous aspiration of the people of Tamil Nadu by renaming the Madras High Court as the High Court of Tamil Nadu. The name Madras ceased to be the official name of the state capital nearly 3 decades ago when it was renamed as Chennai. However, the High Court continues to retain the colonial era name, which no longer reflects the identity aspiration of the people of Tamil Nadu. Recognizing this, the late Puruchitalavi Amma, former Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, as the Chief Minister, ensured that Tamil Nadu education request the government of India High Court of Tamil Nadu instead of Chennai High Court. Nothing will go on except The High Court is the constitutional court for the entire state of Tamil Nadu, not merely the city of Chennai. The unanimous will of the elected representative of Tamil Nadu deserves the highest respect. Renaming the High Court would not merely be a symbolic exercise. I would reform the state identity, uphold the spirit of the corporate federalism, and fulfill the agenda of the bank. Sir, why higher? Once again, urge the chairman to request the government to consider the aspiration of the Tamil Nadu people and also former Chief Minister to rename as Madras High Court as High Court of Tamil Nadu, sir. Thank you very much. श्रीमान संजय भाटिया जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे पहली, एशिया की सबसे पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की धरती से की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जहां 2014 से पहले हिंदुस्तान दुनिया के अन्य देशों को देखता था, उनकी बातें करता था, कि उन्होंने ये शुरुआत करी कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बात करती है। सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि ये जींद से शुरू हुई। आज हरियाणा देश का पहले हाइड्रोजन रेल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में एक बात कही जाती है, काम ऐसा करो कि दुनिया देखती जावे। आज भारत ने वही करके दिखाया जो तकनीक कभी दुनिया के चुनिंदा देशों तक सीमित थी, आज वह भारत की धरती पर दौड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक पहल का विस्तार करते हुए जींद वाया पानीपत वाया रोहतक और हिसार की तरफ से भी इसकी एक्सटेंशन की जाए, ताकि वहां के किसानों को, मजदूरों को एक जो ग्रीन एनर्जी का एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, पर्यावरण को प्रदूषण किए बिना डीजल के विकल्प के रेल इंजन चलाने की शुरुआत की जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठाकर एक सस्ती सेवा का और पर्यावरण को भी फायदा देने वाली इस तकनीक का उपयोग हो। धन्यवाद। श्रीमान हरीश बीरान डॉक्टर संगीता बलवंत जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और नवाचार की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसने न केवल भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है, बल्कि विश्व समुदाय के समक्ष भारत की नई सामर्थ्य का भी सशक्त परिचय कराया है। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण कर एक नया इतिहास रच दिया। इसके साथ ही यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई, जिसने भारतीय धरती से स्वदेशी रूप से विकसित प्रक्षेपण यान के माध्यम से सफलतापूर्वक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। यह केवल एक प्रक्षेपण नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की उड़ान है जो अवसरों का निर्माण करता है, चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलता है और भविष्य की दिशा स्वयं तय करता है। यह ऐतिहासिक
ऐतिहासिक सफलता वर्ष 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की प्रभावशीलता का जीवंत प्रमाण है। जिन सुधारों ने कभी असंभव माने जाने वाले सपनों को आज राष्ट्रीय उपलब्धि में परिवर्तित कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नवाचार, स्टैंड अप संस्कृति, उद्यमता और सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत का युवा केवल रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि विश्व को नई तकनीक और नए समाधान देने वाला उभर रहा है। विक्रम-1 द्वारा उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है, जिसने पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित निजी प्रक्षेपण रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। లోక్సభ వాయిదా పడింది. ప్రారంభమైన కాసేపటికే లోక్సభ వాయిదా పడింది. విపక్షాల ఆందోళనలతో స్పీకర్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. స్పీకర్ ఓం బిర్లా, ప్రధాని మోడీ, హోంమంత్రి సభకు రావాలంటూ విపక్షాలు ఆందోళన చేశాయి. ప్రారంభమైన కాసేపటికే లోక్సభ వాయిదా పడింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు లోక్సభ వాయిదా పడింది. అనంతరం తిరిగి ప్రారంభం కాబోతోంది. 2 గంటలకి లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే విపక్షాలు ఆందోళనలతో